Hello, people. Welcome to the session. I'm Rachita Sachdeva, your Vedanta Chemistry Master Teacher. And आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ top 10 questions of metals and non-chapter. यहाँ पे आप लोगों को 10 ऐसे MCQ questions करने का मौका मिल रहा है, which usually comes in your paper, as well as ये पूरे chapter का concept आपका clear कर दे. So without any delay, let's get ourselves started and do complete all 10 quizzes. और उसके बाद last में मुझे जरूर बताना how many questions you did right and tell me your marks in the chat box. चलिए, but start with the motivation. एक डोज तो बनता है भाई मोटिवेशन. There are times जब आप लोगों को लोग पीछे खींचते, आपने बोला कि भाई मुझे ये बनना है, मुझे ये फील्ड चूज करनी है आगे जाके. That person will give you all the negatives. आपको हर कोई negative बताएगा on fields के, but no one will tell you positive. No one will going to push you towards that field. और ऐसे कई सारे examples होते हैं when people talk negative a lot. Try to avoid such people. Have a positive attitude in yourself. Positive attitude आपका खुद का होगा. Everything stays positive. Everything will be positive. And हम लोग क्या नहीं कर सकते भाई, चांद पे पहुंच चुके हैं. क्या है? Just stay away from people who disparage you, who brings you down. That's deep, very deep. Starting up with your first question, guys. Chuck there for till. Let's solve some chemical locha together. Top 10 questions of metal and non-metal. On burning, metals react with oxygen. Use what? जब भी हम metal को burn करते हैं, burning is always done in presence of air, in presence of oxygen. तो आप लोग एक जनरल रिएक्शन पढ़ के आए हो, which is metal reacts with oxygen and that will in return give you what? Like copper reacts with oxygen, that gives you copper oxide. Similarly यहाँ पे copper oxide जैसे और क्या बनेगा? Metal oxide, and that's the reason option B or answer. I hope you opted for the right. On that positive note, moving on to our next question. Which one of the following gas burns with pop sound when metals react with dilute acid? Again, it comes down to general reaction. Mind it, guys, general reactions अगर याद कर लिए तो आप लोगों को सारी reactions करना आसान होगा. इनसे जो connected reactions होंगी, that's so easy for you. मेटल्स जब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो दिस मेटल हैज टू बी द एक्टिव मेटल, वो H की जगह ले लेता है एंड दैट विल गिव यू मेटल क्लोराइड. आई एम जस्ट टेकिंग वन सिंपल एसिड, मैंने यहाँ पे सिंपल एक एसिड लिया, ठीक है, एंड दिस विल हैपन विद अदर एसिड लाइक H2SO4 ऑल्सो. और उसके बाद अब आपका क्या फ्री हुआ है यहाँ से एलिमेंट? हाइड्रोजन फ्री हुआ है. इन रिटर्न दैट विल गिव यू हाइड्रोजन. जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, दैट विल गिव यू अ गैस व्हिच प्रोड्यूसेस पॉप्स आउट. आई एम प्रीटी मच श्योर आप लोग समझ ही गए होंगे. मैम वी नो दिस, इट इज डेफिनेटली हाइड्रोजन. हाइड्रोजन गैस जब टेस्ट ट्यूब से निकलता है, इफ यू ब्रिंग अ मैच स्टिक दैट रिकिंडल्स विद पॉप साउंड. पॉप साउंड कैसा होता है? यू कैन मेक दैट साउंड आसानी से. That's the sound. It's the same sound which comes from the champagne bottle. जब उसको खोलते हैं तो बिल्कुल ऐसी आवाज आती है. Which of the following is more reactive than water? जब रिएक्शन कराते हैं मेटल की पानी के साथ, तो इनमें से कौन सा मेटल है which is more vigorously reacting or with water? तो ये कहाँ पर आपको क्वेश्चन फॉल होता हुआ दिख रहा है? into a category of reactivities. तो यहाँ पे सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, एल्यूमिनियम में से कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है? वन एंड ओनली आवर ओन सोडियम, है ना. सोडियम का रिएक्टिविटी आप लोग को याद हो तो पोटेशियम से सोडियम उसके नीचे, देन कैल्शियम एंड देन मैग्नीशियम. Please stop calling me a zebra. I like her calling me smart goat. Yeah, that's a trick. That's a mnemonic to learn reactivity. तो सोडियम पानी के साथ बहुत बहुत विग्रसली रिएक्ट करता है and in return that gives you sodium hydroxide, hydrogen gas. Along with that खूब सारा हीट देगा. कितना हीट प्रोवाइड करेगा कि हाइड्रोजन भी जलने लगेगा with a golden yellow flame.
सोडियम ठंडे पानी के साथ विग्रसली रिएक्ट करता है, तो जैसे हम सोडियम का पीस ठंडे पानी में डालते हैं, इट स्टार्ट्स डांसिंग, एकदम से डांस करते करते फट जाएगा, एंड फटते ही दैट कैचेस फायर। कई बार तो वो एकदम से बाहर निकल के आता है, जंप कर जाता है, बिकॉज रिएक्शन इज वेरी वेरी एक्सोथर्मिक, काफी हीट रिलीज। Okay, so yeah, we know that our answer is absolutely sodium. Next question. Which of the following pair of metals will melt if you keep it on your palm? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आजकल का ये बड़ा हॉट क्वेश्चन बना हुआ है। यूजुअली क्या होता है ना, हम लोग मर्करी से कंफ्यूज कर जाते हैं, दैट सॉलिड यूजुअली सॉलिड फॉर्म में होते हैं, लाइक मेटल्स आर यूजुअली इन सॉलिड स्टेट, but mercury is the only metal which is liquid form at room temperature. और कई बच्चे सीजियम और गैलियम को भी उसी पार्ट में गिन लेते हैं कि मैम गैलियम भी तो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, सीजियम भी तो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। तो गैलियम एंड सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट अप्रोक्सीमेटली 29.5 होता है। दैट मीन्स उनका मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर के काफी करीब है। At room temperature they will not be liquid, but they can be liquid very easily, आपके palm की heat से ही वो पिघल जाते हैं। So it's gallium and cesium. These two metals are exceptional metals with very low melting point. Melting point metals का usually high होता है ना, but ये दो ऐसे exceptional metals हैं जिनका melting point बहुत ही ज़्यादा low है, बहुत बहुत low। Moving on to your next question. Which of the following statements is incorrect? यहाँ पे following statement कौन सी incorrect है? गलत, from epiglottis. Ionic compounds conduct electricity in molten state. ये सही या गलत? B. Ionic compounds are generally brittle and breaks into pieces when pressure. Right? C. Electrovalent compounds, बोले तो ionic compounds only, are generally insoluble and soluble in solvents like kerosene, benzene. Ionic compounds have high melting and boiling point. तो क्या बोल दी पब्लिक? कुछ fishy, कुछ मिला यहाँ पे गड़बड़ गड़बड़ घोटाला? Which one is wrong here? I hope you got your answer. So this question comes from the properties of ionic compound. आप लोग properties पढ़ के आए हो। Properties में आपने पढ़ा है nature. Physical nature में आपने पढ़ा कि वो crystalline होते हैं, solid होते हैं, as well as they are brittle. तो ये तो बिल्कुल correct है भाई, गलत नहीं है। This is correct. Ionic compounds conduct electricity in molten state. ये बिल्कुल ठीक है as a statement. क्योंकि मोल्टन स्टेट में आयनिक कंपाउंड्स जब अपने बॉन्ड तोड़ चुके होते हैं तो दे टर्न्स इनटू फ्री आयंस। फ्री आयंस बोले तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, या दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, ये वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड, क्योंकि उनके बीच में स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसको तोड़ने के लिए वी रिक्वायर मोर एनर्जी, तो इसलिए उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज वेरी हाई। So what is not right here is they are not soluble in water. गलत। क्या नमक पानी में डिसॉल्व नहीं होता? क्या नमक कैरोसिन या पेट्रोल में डिसॉल्व होता है? नहीं। तो अदर जस्ट लाइक NaCl, दूसरे आयनिक कंपाउंड्स भी पानी में आसानी से मक्खन डिसॉल्व होते हैं भाई। So that's why it is insoluble in water is not right. गलत है, इसीलिए ये आपका आंसर है। ऑप्शन सी absolutely perfect. Moving on to your next question, the reaction of dash with aluminium is used to join railway tracks or crack machine parts. ये reaction very very important. आपके पास इससे 2 से 3 मार्क का क्वेश्चन भी उठ के आता है। Come on guys, you can do this. A FeO, B Fe2O, C Fe2O3 and D Fe3O4. Formulas याद होने चाहिए guys. So the reaction of dash with aluminium will be used to join railway tracks or crack machine parts. So this is all about what reaction? We are right now talking about thermite reaction. भाइयों और बहनों, हम लोग थर्माइट रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, जिसे हम लोग एल्यूमिनोथर्मी भी कहते हैं प्यार से, एल्यूमिनोथर्मी, और we also call it as
thermite welding. We also call this as thermite welding. तो क्या करेंगे, हेमेटाइट क्या होता है आपका, और Fe2O3 है ना. Fe2O3 को जब हम एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कराते हैं, दैट गिव्स यू Al2O3. अलॉन्ग विद दैट आयरन मिलेगा, वो भी लिक्विड स्टेट में, और उसके साथ खूब सारा हीट रिलीज होता है. So this reaction is exothermic. Fe2O3 react होगा, Fe3O4 is ferrous oxide. No chance. नहीं, ये मैग्नेटिक ऑक्साइड है, इसका रिएक्शन एल्यूमिनियम के साथ नहीं होगा. हेमेटाइट विच इज द ओर ऑफ आयरन ऑक्साइड Fe2O3 that will going to react with aluminium, which makes option C as your fatafati. Here boss, I hope everything is going good. Okay, next, bronze is an alloy of dash and dash. एक मार्क में, 2 मार्क में आपसे क्वेश्चन पूछता है कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अलॉय, और उसके साथ साथ उसका यूज भी पूछ लेता है. 2 यूजेस बता दो, 1 मार्क का वो हो गया, 1 मार्क का, ऐसे क्वेश्चन. So bronze is an alloy of dash and dash, copper and zinc, copper and iron, copper and tin, and zinc and alloys क्या होते हैं? Homogeneous mixtures of metals along with other metals, homogeneous mixtures of metals with non-metals, but यहाँ पे non-metal का तो कोई option नहीं है, all metals. So bronze is actually an alloy of copper and tin. Brass is an alloy of copper and भाइयों और बहनों, you have to learn this part. Constituents पूछ ले, बहुत बार पूछ चुका है पिछले. Okay, coming up to your 8th question, which of the following metals reacting with sodium hydroxide solution produce hydrogen gas? यहाँ पे ऐसे कौन से मेटल है जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके they will going to produce salt and hydrogen gas? Which of the following metals reacts with sodium hydroxide solution hydrogen? अगर मैं आप लोगों को एक बात यहाँ ध्यान दिलाऊं, आप लोगों ने जनरल रिएक्शन, metals react with acids to give salt and hydrogen, बट कुछ मेटल्स होते हैं जो कि बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं एंड प्रोड्यूसेस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. ऐसे मेटल्स की प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक. एम्फोटेरिक बोले तो विच हैज द एबिलिटी टू रिएक्ट विद एसिड्स आल्सो एंड बेसिस आल्सो. तो यहाँ पे आपके एम्फोटेरिक मेटल्स कौन है? हु आर यू? सो इट्स एल्यूमिनियम and aluminium and zinc are the amphoteric metal. That's why it makes option 2 and 4. 2 and 4, which is your, that's your answer. I hope you got it. बताते जाओ भाई कितने सही हो गए हैं question. Quickly to let me know in the chat box. I'll come there and definitely look into your marks. Okay जी. And if you're making any mistake, लिख लो. ये mistake दोबारा नहीं होनी चाहिए. Next question. Generally, metals react with acid to give salt and hydrogen gas. Which of the following acid do not give hydrogen gas on reacting with except manganese and nickel? Okay. तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि जनरली जो होता है, जनरल मीन्स आइडियली रिएक्शन क्या होती है कि मेटल एसिड के साथ रिएक्ट होगा, आपको सॉल्ट देगा और साथ में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे. बट ऐसा कौन सा एसिड है जो कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करेगा? So that will be one of the very strong oxidizing agent. कोई ऐसा एसिड होना चाहिए जिसकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की पावर बहुत ज्यादा हो, इतनी ज्यादा कि वो हाइड्रोजन को प्रोड्यूस ना होने दे और उसकी जगह पे it would going to produce water, and who is none other than HNO3 nitric acid. Option B is your answer. तो HNO3 क्योंकि एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो हाइड्रोजन को पानी में चेंज कर एंड अपने आप को वो नाइट्रोजन ऑक्साइड में रिड्यूस कर लेता है. नाइट्रोजन ऑक्साइड कोई भी हो सकता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, दैट डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HNO3 एक्चुअली. तो इट इज HNO3. लेकिन ये इनके ऊपर
पर दया कर चुका है। मैग्नीशियम और मैंगनीज के साथ इनका बॉन्ड एंड रिलेशन इज वेरी कूल। दे आर लाइक कि मैग्नीज या मैग्नीशियम अगर वेरी कोल्ड डाइल्यूट, वेरी डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करेंगे तो दैट विल बिहेव एज अ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट and in return will provide you hydrogen as a normal reaction. Super duper important. And coming up to your 10th question. The element X, an element X जिसका atomic number है 12, simple है, with another element Y, एक element Y है जिसका atomic number है 17, टू फॉर्म कंपाउंड Z, इनके मिलने से बना है कंपाउंड Z। क्या जी? Which of the following statement are true regarding the compound? इस कंपाउंड के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट? देखो दिमाग में तुम्हारे चलने तो लग गया है कि ये X with atomic number 12 क्या है? We know that X with atomic number is magnesium. साइड में तुम लोग सोच सकते हो, लेकिन अगर ये आपका थियोरेटिकल क्वेश्चन होता तो आप मैग्नीशियम या क्लोरीन के फॉर्म में नहीं लिखोगे आंसर। टेक दिस एडवाइस गाइस, अगर यही क्वेश्चन आपके थियोरेटिकल फॉर्म में आता और आपको वो बोलता कि एक्सप्लेन करो, तो इन दैट मैनर यू विल नॉट सपोज टू राइट द एलिमेंट्स, क्योंकि उसे नहीं पूछा है कि एलिमेंट कौन से है, उसने सिर्फ ये पूछा है, बोला है कि एक्स एक ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 12 है, Y एक ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 17 है। तो ये आपके पीछे पीछे दिमाग में चल रहा है कि ये मैग्नीशियम और क्लोरीन है। आंसर देम इन द सेम मैनर एज दे आस्क यू द क्वेश्चन। XYZ के फॉर्म में क्वेश्चन पूछा है, आंसर भी उसी फॉर्म में दो। डोंट गिव आंसर्स विद एलिमेंट्स लाइक दिस, दैट्स नॉट एक्सेप्ट एट ऑल। ओके, तो हमें पता है कि मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच में MgCl2 जैसा कंपाउंड बनता है। मतलब अगर मैं इसको XY के फॉर्म में बनाना चाहूँ तो XY2 बनेगा ना, सिंपल। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ Z, व्हाट इज Z? Z इज योर कंपाउंड। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला Z इज XY2। बिल्कुल ट्रू है जी, एकदम करेक्ट है। It is soluble in water. क्या MgCl2 soluble है water में? बिल्कुल soluble है। True. X and Y are joined by sharing electron. Oh, no, no. Guys, it's an ionic compound. Ionic compound में sharing नहीं होता है, covalent में होता है। Ionic compound तो एक आध ले वाली बात होती है भाई। So ionic में metals were going to transfer electrons to non-metal. तो यहाँ पे क्या हुआ होगा? मैग्नीशियम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स 282, यही इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बिकॉज दे हैव 12 एटॉमिक नंबर। क्लोरीन ऑन द अदर हैंड हैज एटॉमिक नंबर 1787। ठीक है, तो एक क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए जो कि यहाँ से आएगा, एक और क्लोरीन एटम होगा जिसको एक और इलेक्ट्रॉन ये दे देगा, transfer of 1 electron each, that leads to the formation of MgCl2। XY2 MgCl2 तो पीछे, लाइक हम लोग अलग से बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। XY2 जो पेपर पे आना चाहिए वो XY2 आना चाहिए, MgCl2 के बारे में आप आंसर्स में बात नहीं करोगे। तो XY2 कैसे बना? by transfer of electrons, not by sharing of electrons, because it's a ionic compound. It would conduct electricity in molten state। बिल्कुल, molten state हो या aqueous state हो, इनमें तो ये दौड़ के electricity conduct करेंगे क्योंकि यहाँ पे free ions है। Free ions will be responsible for conducting electricity and that's the reason it is also true। तो बचे कौन? 1, 2, 4। 1, 2 का 4, 4, 2 का 1 is Lakhan। Okay, 1, 2 and 4. That would be your answer, which makes option। चले guys, now we have come to an end। जल्दी से मुझे इसका आंसर बता दो। What is the reducing agent in aluminium? In thermite reaction? Okay guys, चलिए। So we have come to an end। Do not forget to press the bell icon to get more informational videos,
to clarify more of your concepts. I'll be definitely bringing more videos for you. And for more informational and other details, you can always join Telegram channel and follow me on my Insta channel. Okay? Thank you so much, guys. That was it from my side. This is me, Rachita Sachdeva, signing off. Thank you. फिर मिलेंगे कब what?